Okay, ji, let's go over to the next manuscript. All right. And okay, ji. So the title for this research is MRI evaluation of spine in young adults with backache in Pakistan, a descriptive cross-sectional study. इन्होंने ये एक स्टडी कर रही हैं जिसमें ये स्पाइन यंग एडल्ट्स जो बैकएक के साथ प्रेजेंट करते हैं उनके एमआरआई स्पाइन्स ये देख रही हैं. ओके, एंड इट्स अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, उन्हें आगे फॉलो नहीं कर रही हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. मैं सबको म्यूट कर दूं पहले, अल्लाह. यस प्लीज. ओके, this is a cross-sectional study. So the investigator or the researcher is going to just take young adults who present with backache and who have MRIs, और फिर वो उसको देखेंगी, उसको describe करेंगी कि उन MRIs में क्या था. इन्होंने लिखा है, backache is a common problem in old age due to age-related degenerative changes. However, its incidence has been increased in young population over the past few years, and Hasbe Maamul, I have asked for reference. Low backache is defined as pain and discomfort between costal margins and lower gluteal folds. So एक region है जिसको low backache कहते हैं. Low backache is one of the common causes of hospital visits, which has resulted in overall increase in socio-economic burden globally. And I have given a comment कि आप मतलब ये भी बताएं कि क्यों, आखिर क्या लोग उसकी वजह से छुट्टियां कर रहे हैं, क्या लोग उसकी वजह से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं अपने काम में, क्या वजह है. As a result of this burden, various studies are emphasizing the diagnosis and management of low backache, emphasizing the, यहाँ पे होगा, critical importance of diagnosis and early diagnosis and management of low backache. It could be due to a number of causes: early disc degeneration, changes in normal herniation, अच्छा, need दोबारा से need shorter sentences and break this into 3 sentences plus reference भी देना है. It is crucial to identify the risk factors so that changes in lifestyle can be incorporated. ये फिर मैंने लिखा है, you need to explain your study purpose better. How is MRI going to help and help the patients? So the researcher explained it to me. The researcher told me कि हम MRI जो है वो young adults का यहाँ पे MRI होता है और वो उससे हमें पता चलता है. So this query is already addressed. MRI has a significant role in evaluation of ये इसको भी reference चाहिए. इन्होंने reference वैसे by the way दिया हुआ है यहाँ पे. MRI is a preferred modality. So the only thing that this introduction is lacking is the objectives of the study जो ये propose कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा मुझे इसमें और कोई ऐसा बड़ी कमी नहीं नजर आई. थोड़ा सा ज्यादा elaborate करना है, references डालने हैं, sentences छोटे करने हैं, ऑर्डर ऑफ राइटिंग जो है यानी वो फ्लो, एक स्मूथ फ्लोइंग नैरेटिव लिखना है. लेकिन उसके अलावा आई थिंक दिस इज मीटिंग द फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंट्रोडक्शन. एटलीस्ट पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि द टाइटल इज एलैबोरेटेड एंड रैशनल इज एक्सप्लेन, वो इसके अंदर मौजूद है. नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर टू टेक क्वेश्चंस. नहीं है तो ठीक है, विल जस्ट मूव ऑन. I'll share a new screen. अच्छा जी, the title is, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर, unsuccessful medical expulsive therapy in ureteral stone disease. What went wrong? So it's a pretty, the person is looking for the causes for the lack of success or the unsuccessful medical expulsive therapy. And there is any difference between abstract and introduction? Yes, very big difference. आप जाके आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स और इंट्रोडक्शन देखें, पढ़ें खुद, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, what are we talking about.
Urolithiasis is one of the major pathologies found in patients, and overall the incidence is about इतना और references लिखे हुए हैं. Treatment depends upon size, location, ये फलां, less than 10 analgesia, hydration. इसका reference नहीं है यहाँ पे. Hello. Treatment आपने कहाँ से treatment depends upon ये बातें उठाई हैं. Although this may be your own subject, but in an article you need references. अच्छा जी. If there is no indication for immediate surgical intervention, like deranged, ये तो अल्लाहु अकबर, intervention, deranged, ये तो खुद ही से ठीक हो जाएगा. रीनल फंक्शन ये अच्छा, कॉमा के बाद बच्चे स्पेस जरूर दिया करें. अच्छा, ये बहुत जरूरी है. ये आप में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं और दिस इज नॉट नाइस. And I'm really obsessive about, grammatical appropriateness and correction. Acha, has been many of randomized controlled trials to improve ureteric expulsion, and ये और उसका भी reference दिया हुआ है. ठीक है, medical expulsion therapy is usually given up to 4 weeks depending upon the degree of hydronephrosis, stone size and location. Reference दिया हुआ है. No discrete time duration has been set, और वो सारी बात इन्होंने लिखी हुई है. Apart from other reasons, it has been observed based on a daily clinical practice as well as reviewing reports in international literature that the most noticeable factor is the gap between the different clinicians involved in the management, such as ये आपने बहुत बड़ी बात की है सर जी. इसके लिए जो है ना, आपको डेफिनेटली रेफरेंस चाहिए. और एक तो ये जो आपका 4-5 लाइनों का सेंटेंस है ना, दिस शुड बी 2 or 3 sentences. 2 भी नहीं, 3 or 4 sentences. ओके प्लीज, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस, मतलब मेरी सांस फूल जाती है पढ़ते हुए. ये मैंने क्या कर दिया. हेलो. अच्छा, बहुत जल्दी में लिखा है सर जी, बहुत जल्दी में लिखा है आपने. अच्छा जी. सो ये इसी के आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको पूरा. अल्लाह माफ करे, मैं बकवास कर रही हूँ, जस्ट बीइंग sarcastic. अच्छा. सो फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अलग से लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, इंट्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं. काफी क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है ये. अम, क्या आखिर क्या करना चाहते हैं, इनकी जिंदगी का क्या मकसद है. इसका नेक्स्ट सेशन जब हम कर रहे होंगे, सो आई विल गो ओवर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड यू विल हैव अ क्लियर आइडिया. To devise a clinically guided accurate diagnostic plan for a patient with suspected ये. So आपने एक clinically guided accurate diagnostic plan बनाना है. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. अच्छी तरह सोच लें. टेलर ट्रीटमेंट प्लान फॉर पेशेंट डायग्नोज विद ये. अब आपने ट्रीटमेंट प्लान भी अप्लाई करना है. ठीक है जी, आपकी ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका. Enhance collaboration among इतना make treatment more efficacious. Efficacious लिखा हुआ है, efficacious है ये. For patients with ureterolithiasis. असल में जो काम आप करने को कह रहे हैं सर जी, this is more like an audit. ठीक है, but audit is also a scientific article, वो आप लिख सकते हैं. लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, ये audit को ज्यादा सूट करती है. ये is not a simple scientific paper. सो सोच लें अच्छी तरह. एंड यस, इट इज डूएबल और इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं. नाउ लेट मी सी इफ देयर आर एनी कमेंट्स. डू वी हैव अदर कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू, टाइटल एंड रैशनल. टाइटल, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव्स. नूर, 3 चीजें थी शुरू में जो मैंने बताया था. आई डोंट नो, मे बी यू ज्वाइन लेट. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. कि उसके अंदर टाइटल डिफाइन हुआ हुआ हो, उसका रैशनल एक्सप्लेन हुआ वो कि ये क्यों हम कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, अगर हमने ये ना किया तो क्या होगा, और फिर आपकी अपनी स्टडी के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप वो बता रहे हैं. ठीक है जी. ओके, सो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टडी. ये हमने कर ली थी कि नहीं, ठहरो. नहीं, ये नहीं हुई थी. ओके, सो दिस इज एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रैक्टिस अमंग फिजिशियंस. दुनिया के सबसे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है आपने.
टू कलेक्ट डाटा, दोबारा से कलेक्ट डाटा, नो दिस इज नॉट ऑन, और ये इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। कलेक्ट डाटा जो है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट डाटा इज पार्ट ऑफ रिसर्च बच्चे, ठीक है। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन, इन्होंने क्या करना है कि एंटी माइक्रोबियल प्रिंसिपल नॉलेज फिजिशियन की देखनी है फ्रॉम डिफरेंट लेवल एंड हाउस जॉब टू कंसल्टेंट, और फिजिशियन अबाउट नॉलेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। दो किस्म के इन्होंने, अब इसमें भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। Antibiotics are the drugs or substances which are used against microbes, cause infection. They are used in various infections. आपको यहाँ पे हर जगह पे रेफरेंस चाहिए, so reference kahin nahi gaya. They are used in various infections, decreasing mortality, morbidity. Time it is realized that organism against which are used become resistant. Involve not chota sentence likhe. Shorten the sentence. ठीक है जी. Divide into 3 to 4 sentences, please. ठीक है जी. अच्छा. To tackle with this antimicrobial stewardship programs, to tackle with this, tackle with what? What is this? ऐसे नहीं लिखते, ठीक है जी, आपने इसमें ये लिखना है to tackle with the emerging problem of antimicrobial resistance. Antimicrobial stewardship programs are introduced which are believed to be successful against ये और फिर सेंटेंस माइक्रोबियल, यहाँ पे भी रेफरेंस चाहिए बच्चे, ठीक है जी। एंटी माइक्रोबियल कोऑर्डिनेटेड, ये डेफिनेशन है, गुड, ये आपने यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रूव टू बी इफेक्टिव वेयर इट वाज इम्प्लीमेंटेड, डिक्रीज, ये सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है जी। प्रिंसिपल्स, बट अब यहाँ पे रेफरेंस लिखना है, but its implementation is challenging, especially in low income country, lack of skilled staff and resources, और आपने reference दिया हुआ है, very good. Many one of the main challenges is एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ फिजिशियन हूँ ये, ऑल्दो मेनी फिजिशियन आर अवेयर ऑफ ये फलाना ढिंगड़ा, लेकिन वो बेचारे फिर भी लिखते रहते हैं एंटीबायोटिक, पता नहीं अल्लाह का कहर है उनके ऊपर। इन पाकिस्तान स्टडीज आर कंडक्टेड, ये बिलाल, ये दोबारा से ये बात जो है ना बच्चे, ये फलाने क्या किया और ढमकाने क्या किया, ये रिसर्च, ये डिस्कशन का हिस्सा है, इसको इंट्रोडक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। अनदर स्टडी कंडक्टेड बाय ये ब्ला डी ब्ला, ये भी वही बात है, सारी वही बात है। हाँ, सो ये दो बातें आपकी डिस्कशन में जाएंगी। इन व्यू ऑफ द अबव स्टडीज व्हिच आर कंडक्टेड इन स्पेसिफिक सिटीज और हॉस्पिटल, ये वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट स्टडी इन ये डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इन व्यू ऑफ जो ये है ना, इसको भी आपने कम से कम 2-3 सेंटेंसेस में डिवाइड करना है। इट इज अ टीचिंग हॉस्पिटल वेयर, अच्छा वो आप अपना हॉस्पिटल डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपने अच्छा किया। टू हैव अ नॉलेज ऑफ फिजिशियंस रिगार्डिंग ये इज क्रूशियल, टू हैव अ नॉलेज, एनीवे ठीक हो जाएगा बाद में जब रिव्यू कर रहे होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड में फिर से रिव्यू होती है, वॉशिंग मशीन में से धुल के निकलती है, तो उसमें ये सारे एक बेख निकल जाते हैं उसमें से, और फिर ये आपके रेफरेंसेस हैं, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, वेरी गुड, ठीक है जी। सो दिस इज अ गुड पीस ऑफ वर्क आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई थिंक, और एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप, लेकिन इसमें जो एक मेन बात है ना, देखिए इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, आपने फिजिशियंस की नॉलेज देखनी है, और उसके बाद आपने डिफरेंट लेवल के लोगों की नॉलेज देखनी है, सो आई थिंक आपने इसमें से एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होगा, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द कमेंट? ऑलराइट मैम, ओके। नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, देखो इस पे हमने खासी इन डेप्थ क्रिटिक की है, इसमें ये सारी चीजें हमने बार बार देखी हैं। अब बताओ, इफ देयर आर एनी पार्ट्स दैट दिस इंट्रोडक्शन इज मिसिंग, टाइटल में से क्या है, और रैशनल अच्छा बनाया हुआ है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि नहीं, ये 3 चीजें हम देख रहे होते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके जी, लेट मी जस्ट गो ओवर टू द नेक्स्ट वन।
अच्छा जी, स्ट्रेस लेवल इज राइज, न्यूरोसर्जरी, ये आ गया, ये रहा टाइटल। Rising level of stress in neurosurgery resident at LRH, a cross sectional study. So सबसे पहले तो ये जो टाइटल है ना आपका, इसमें एक मैं आपको बात बताती हूँ। मेथोडोलॉजी क्रॉस सेक्शनल स्टडी लिखी हुई है ना, विच इज ओके, आप क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, लेकिन राइजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस आप, यू नीड ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी। आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी से कोई राइजिंग चीज नहीं वो कर सकते डॉक्टर साहब। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस बताएगी। आप हो सकता है आप कहें कि फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, वो भी हो सकता है वो क्रॉस सेक्शन, लेकिन वो फर्क आपको बता देगा कि फर्स्ट ईयर में कम है या ज्यादा है और थर्ड ईयर में फिर कम है या ज्यादा है। लेकिन राइजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस इन रेजिडेंट्स का मतलब ये है कि मैं एक रेजिडेंट हूँ, आपने आज मुझे पकड़ा है, मेरा लेवल ऑफ स्ट्रेस मेजर किया है, और उसके बाद आप अगले साल और अगले साल और अगले साल मेरा लेवल ऑफ स्ट्रेस मेरा ही मेजर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी मल्टीवेरिएट एनालिसिस लगा रहे हैं कि अफशा को इतना स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो लेडी रीडिंग में न्यूरोसर्जरी की रेजिडेंट है। सो प्रोस्पेक्ट ये इसका डिफरेंट डिजाइन है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप ये कर सकते हैं, यू कैन ओनली से लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये कर सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग लेवल क्या है। ठीक है जी, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे आ जाएं इनके ऑब्जेक्टिव्स पे। आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ इन, देखें आपका जो टाइटल है ना, राइजिंग लेवल ऑफ, उसमें तो कॉज का कहीं है ही नहीं, कॉज का तो जिक्र ही नहीं है बाबा उसमें। या तो ऊपर कॉज डालें और या यहाँ से कॉज निकालें। ठीक है जी, अब आ जाएं इम्प्रूव मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग, दिस इज वेरी गुड, यू कैन इनडायरेक्टली बाय गिविंग द डाटा set up regular counseling session. No, this is absolutely not doable, not doable at all through your study. It's a very good thing to do, and I wish that they do that in LRH, but it is not possible through your study जो आप propose कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएं आप इंट्रोडक्शन पे। ये रहा, stress is a state of worry or tension, challenging situations. Work stress can manifest as emotional exhaustion. ये बुरी बात है, burnout syndrome आ गया। फिर हर्बर्ट फ्रॉइडनबर्गर, कोई जर्मन है, डिस्क्राइब्स स्टम्प बर्नआउट एज अ स्टेट ऑफ वाइटल एग्जॉस्शन इन द वर्क प्लेस, बुरी बात ये, और आपने रेफरेंस दिया हुआ है क्रिस्टियाना मसलाह लेटर, ये इस तरह करके उसने ये बात की, ये रेफरेंस नंबर 2 है। वर्कर्स इन ऑक्यूपेशन अप्रूव टू, ये आपने डिफाइन कर दिया वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस। एक बात इसमें मैं जो आपको बता दूं कि ये मेडिसिन रिलेटेड यानी मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड स्ट्रेस है या ये जस्ट वर्क प्लेस स्ट्रेस है, दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग फिजिशियंस एंड सर्जन्स एंड आना सारे के सारे जो हैं। हाई वर्कलोड typical of healthcare good, यहाँ पे आपने बता दिया, leads to stress. Studies have highlighted the overall high level among surgical professionals. अब वापस आप सर्जरी पे आ गए, जो जो आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ मोर डिमांडिंग जॉब। ठीक है, नंबर 4 रेफरेंस है, न्यूरोसर्जरी इज पर्टिकुलरली डिमांडिंग, आई डोंट नो कितनी है, होगी वैसे काफी ज्यादा है। Although the field is financially rewarding, it is recognized globally as physically and mentally taxing. Very good. Neurosurgeon often work on long hours. ये obviously बेचारे पागल होते हैं, सबको डांटते रहते हैं। In the developing country, we're already understaffed and under-equipped in the relevance. Yes, very good. Therefore, we do not have clearly defined job nature ये towards burnout. Despite these challenges, relatively few published studies, very good. ये आपका rationale है, studies नहीं है इसके ऊपर, burnout के ऊपर, और आप उस चीज को स्टडी करना ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी, 4 रेफरेंसेस हैं आपके और ये आपकी इंट्रोडक्शन है। और ये मैंने आपको फीडबैक दे दिया। Are there any comments that you would like to make? All of you, anyone? So this is a pretty deep and a pretty intense study जो यहाँ पे मैंने आपके सामने पढ़ी है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपके जरूर आपके जहन में सवाल होंगे। ओके जी, so let's move on to the next one.
Why is quackery effectively happening in Pakistan was the research question. ठीक है जी, इनका टाइटल है फैक्टर्स contributing to effectively happening of quackery in rural areas of Pakistan, KP और पेशावर KP पाकिस्तान. डिटर्मिन द फैक्ट, ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, वही बात टाइटल इन्होंने ऑब्जेक्टिव में लिखी हुई है, ठीक है, वेरी स्मार्ट. बट दे ही वांट्स टू सी और शी वांट्स टू सी कि क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लोग क्वैक्स के पास जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स. इन्होंने इन्होंने भी लिंक्स लिखे हैं, लेकिन इन्होंने डिफेंस बहुत अच्छा किया हुआ है. He has really, read his references, and then he has critiqued them, sort of given them why they should be included in his article or her article. Okay, ji, ye raha. One of the major and primary responsibility of any country is to provide healthcare facilities to its people. Really, tell that to Pakistanis. All the developed countries in the world are successful in providing best possible. However, developing countries are struggling because functioning of a healthcare system. In comparison to its population and growth rate, the scarcely available infrastructure. You have built a good background. ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है, या आपने अच्छा लिखा हुआ है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो होनी चाहिए. फिर आप बहुत लंबे-लंबे सेंटेंसेस हैं. देखो ये वाला सेंटेंस कितना लंबा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो. अल्लाहू अकबर! इन कंपैरिजन टू इट्स पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट, the scarcely available infrastructure, equipment, overburdened healthcare, overly expensive private sector health, unethical practice, poor law enforcement, lower literacy rate, poverty, compelling citizens to find easily available and cheap alternatives at their doorsteps, which gives way to. बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत, it's a good account, but it cannot be one sentence. ठीक है, प्लीज इसको रिवाइज करें, इसको 4-5 सेंटेंसेस में डिवाइड करें, और बात बहुत अच्छी है, यही आपका टॉपिक है सारा. Quackery and malpractice is usually considered same and is given ye. Well, it's not, should not be considered the same, but a promotion of fraudulent or ignorant medical practices. And a quack is a fraudulent or ye pretender to medical skill. While malpractice according is careless, wrong or illegal behavior. Very good. आपने references दिए हुए हैं. Throughout history, quackery is appealing to the eyes of public eager to complete cure. Eager for complete cure. People are always fascinated by miraculous treatment, whatever faiths and belief. ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है. A quintessential American quack amassing his fortune for implanting good testicles into a naive man. Uh, ये डिस्कशन का हिस्सा है. ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे बात लिखी है ना, ये these techniques would work way more easier provided solid. ये जॉन और ये जो है ना, ये आपकी डिस्कशन का हिस्सा है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. फेमस न्यूयॉर्क, ये भी एक और केस है जिसमें ऐसी हरकतें उन्होंने की थी, और दोनों अमेरिका के हैं, सो दे रियली डोंट अप्लाई टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में हाँ, आप क्वैकरी के क्या रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो एक अलग कहानी है. वो ये नहीं है जो आप यहाँ अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं. Quackery with its long-standing history has become one of the in morbidity, mortality, affecting thousands of innocent lives. और ये. अच्छा, आपने भी वही गलती की है, सिर्फ लिंक्स यहाँ पे भेजे हुए हैं, साइटेशन पूरी की पूरी नहीं भेजी. अब मुझे बताएं, if there are any questions or feedback. सारी चीज मैंने आपके सामने पढ़ दी है. It's well written and it is, इसका बैकग्राउंड भी आपने, रैशनल भी अच्छा बताया है. आपने अपना ऑब्जेक्टिव एंड में नहीं बताया कि आप इतनी सारी ये बात आप क्यों कर रहे हैं. Why? आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या, आप इस स्टडी के जरिए क्या करना चाहते हैं. ठीक है जी. So that was that. Let me just go to the next study. Okay ji. Lack of knowledge in history taking among students 4th year and house job level in different medical and dental teaching hospitals of Pakistan. Collect baseline data. फिर collect data आ गया, मैं की करा तो मैं किथे जावां. फिर कलेक्ट बेसलाइन डाटा आ गया. मेरी गलती है, मुझे आपको पहले पढ़ाना चाहिए था, बट एनीवे आई थिंक इट्स अ गुड एक्सरसाइज. और रीजन फॉर लैक ऑफ नॉलेज अमंग हाउस ऑफिसर्स, और ये बुरी बात हो रही है. हिस्ट्री टेकिंग इज अ डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ ये पास सर्जिकल thoroughly to accurately diagnose. फिर इतना, ये एक पूरा 3 लाइनें हैं बच्चे. These can be 3 sentences instead of
just one sentence. It also helps in making differential diagnosis, building healthy relationship. La 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 la. Acha ji, history taking is crucial in medical and dental field. However, it has been noted many final year house job exhibit lack of knowledge. अच्छा, आपके कहीं पे रेफरेंस नहीं लिखा हुआ बच्चे? ठीक है, रेफरेंस कहाँ से आपको ये सबूत मिला है, कहाँ से आपने ये बात सोची है, ये बात कहाँ से आई है? ठीक है, अच्छा, देयर इज अ कमेंट, लैक ऑफ रेफरेंसेस। जी हाँ, वेरी गुड हामिद, एग्जैक्टली वही मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। Deficient history taking patient can lead to serious medical and flan emergencies. बुरी बात है, emergency नहीं होनी चाहिए। ये रेफरेंस आपने देना है। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? Shortcoming can negatively impact ये सबसे important रेफरेंस ये है। ये कहाँ से आया है? किसने आपको बताया है? Although we know these are facts, लेकिन you cannot just take them at the face value. The gap in knowledge could be due to different factors and need to be addressed. Enhance unsupervised administration of local anesthesia. हाँ, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही बच्चे, ये कहाँ से आई है? लोकल एनेस्थीसिया कहाँ से आ गया? क्योंकि मैं बिल्कुल एंड याद है आपको, मैं ये एंड में पढ़ रही हूँ, मैंने इससे पहले ये नहीं पढ़ा। अच्छा, एक तो इसमें रेफरेंसेस है ही नहीं, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन भेज दिया, इसमें रेफरेंसेस नहीं है, सो योर असाइनमेंट टेक्निकली इज इनकम्प्लीट। और फिर ये है कि ये बात आपने इसमें थोड़ी एक्सप्लेन करनी है आपका, और इट शुड बी, लेट मी जस्ट सी व्हाट इज द वर्ड काउंट। आपका वर्ड काउंट जो है इट इज 200 वर्ड्स, ठीक है, आप आराम से 300-400 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख सकती हैं। So I'm going to send it back to you, and then we will go over it next time, inshallah. या फीडबैक मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ओके जी, अब अगले पे जाते हैं। What is the relationship between time spent on social media and inferiority complex? Interesting, ये क्वेश्चन चेंज हुआ है, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। Relationship between time spent on social media and developing inferiority complex among university students, a survey टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा। ये आप सब एक एक जगह पे तो नहीं रहते, मतलब रिश्तेदार तो नहीं है या फ्रेंड्स तो नहीं है, ये कलेक्ट बेसलाइन डाटा जो है ना, टू डिटरमिन इफ एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ इन्फी, टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन डिटरमिन इफ जेंडर प्लेज, ये दोनों एक ही हैं। अच्छा बच्चे, ये एक ही हैं। अच्छा, यू डोंट नीड टू हैव फोर, मतलब आप, यू कैन हैव टू, इट्स ओके। ऑब्जर्वेशनल क्रॉस सेक्शनल, फाइनल एनालिसिस हो गई, ये बहुत अच्छा है। और फिर ये वो ड्राफ्ट है। Throughout history, advancement in technology have led to changes in individual life. Internet, particularly social media, is no exception. The use of social media becoming increasingly popular among social media beneficial for an uncountable is beneficial. Although social media is beneficial, no, it's not. But anyway, its excessive use has significant side effects. Yes, true. One of them is development of inferiority. Baba, you need a very good reference here. Inferiority refers to a feeling of being less competent or valued due to perceived shortcomings, whether physio, psychological, or social. Good. Feelings of inferiority stem from lacking in certain. ये दोनों एक ही बात है बाबा। आप दोनों, ये दोनों 2 और 3 जो है ना, ये एक ही बात है, रिपीट नहीं करते और फिर फौरन रिपीट कर रहे हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आइडियलाइज्ड इमेजेस कैन कंट्रीब्यूट टू ये रेफरेंस नंबर 4, ये आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड। कहाँ है रेफरेंस नंबर 4 यार? Oh, you didn't send references? Okay. ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है? सिस्टमैटिक रिव्यू, ये डिस्ट्रेस इन, आपका रेफरेंस है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन आई मीन हाउ डिड यू लिंक योर रेफरेंसेस? You did not write your references, you've only linked your references here, so that is
That's not useful. That's not how it is done in literature. Okay. हाँ, एकदम से 3 comments आ गए. Those are actually clickable links. जी हाँ, इस तरह है ना जान मेरी. क्लिकेबल लिंक्स जो हैं वो काम नहीं करते आपकी पब्लिकेशन में. वो यू नीड टू एक्चुअली राइट दोज रेफरेंसेस. ठीक है. अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम. Somebody wrote internet problem. Collect data was initially used in a dummy project. So even I have copied. Yeah, yes, you have copied. I know everybody is copied. Okay. So clickable references यहाँ से निकाल देने हैं और आपने असली references मुझे भेजने हैं. Excessive internet can impair academic performance और वो भी clickable reference में लिखा हुआ होगा कि वो ये कैसे करता है. Hello, click. Oh, hello. अच्छा, खुल गया. ये है फेसबुक एंड टेक्सटिंग मेड मी डू इट. मीडिया इंक्लूड कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर. किसी ने बुक है मेरे ख्याल में ये, क्योंकि 948 पेज है, सो ये कोई पूरी बुक होगी. अच्छा, और नंबर 9 जो है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ फेसबुक यूज एंड ब्ला 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 कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन. दिस इज अ जेन्युइन रेफरेंस. अच्छा, नंबर 5 जो है वो है सोशल कंपैरिजन पॉपुलर मीडिया. Number 6 is qualitative research on psychological problems here, which is very important. Very good. Okay. Hebei University. Okay. And then we have longitudinal relationship between ये. So your references are excellent. लेकिन ये है कि आपने उसकी लिस्ट मुझे भेजनी है जैसा जैसे होते हैं references. Okay. Um, Ma'am, these are clickable. Did it on my mobile. Correct them. Wow, you have to teach us how to do it on the mobile. It's very fascinating. Okay, ji. So this is the feedback that I have. You need to, give a list of references. और उसके अलावा ये है. अच्छा, research aims to explore the relationship. That's very good. आपने ये explain कर दिया है. Okay, जी. Let me just go to the next person. I think ये हमने review कर लिया था नहीं. कोई रह तो नहीं गया. हेलो, यहाँ पे मुझे बताओगे जी. आपने मेरा नहीं रिव्यू किया. मुझे भी रिव्यू करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सारे रिव्यू कर लिए हैं. जितने असाइनमेंट्स मैम. माइन इज नॉट रिसीव्ड. ऑलराइट इमरान, लेट मी जस्ट सी. मेरा रहता है. शाबाश, अच्छा है कि आप लोगों ने बता दिया. गॉड, दिस पिक्चर इज सो अगली. पता नहीं कहाँ से इतनी लाइट आ रही है. इसमें हैं, आप लोगों के भी हैं. ठहरो. अस्जद. Oh, okay. So I am missing some. ठहरो, मुझे खोलने दो. Okay. Hmm. Let me just go into documents. ये रहा. Downloads. Hmm. अच्छा, इसमें. Let me just open this one. Hmm. अब मैं फिर से करती हूँ. ये स्ट्रोक वाला तो हमने कर नहीं लिया था. लेट मी जस्ट सी कौन कौन कह रहा है कि हमारा नहीं रिव्यू हुआ. मैं आई ओपन इट. उरूज सिंह, आपने किस नाम से भेजा था बच्चे? एक तो आपका नाम भी कुछ और है ना. अ, एक मिनट. हाँ, that is why it is not saved. I was saving according to the names. Let me just take it from the email. Okay, आपने जो email भेजी थी मैं उसमें से निकालती हूँ. 1 मिनट. हम्म. हाँ, ये रहा.
अच्छा, किस किस को ये वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग द गैप्स नजर आ रहा है ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट आपको कि नहीं? हाँ, आई चेक योर ईमेल इमरान, नहीं नजर आ रहा? अच्छा, इट्स ओके, आई एम गोइंग टू, ये रहा, ये तो खुल गया। अब नजर आ रहा है आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग गैप्स? Yes. Okay, good. Thank you. So this is identify and addressing the gaps, overcoming barriers to emergency volunteering opportunities for medical students in Pakistan. A very, very unique topic, I must say. और उसके बाद इन्होंने तीन ऑब्जेक्टिव्स दिए: आइडेंटिफाई द बैरियर्स फेस बाय मेडिकल स्टूडेंट्स, evaluate the students perception regarding institutional support, compare the collected data to identify discrepancies. Excellent, excellent. जिसने भी ये लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और बहुत इसमें एक फ्लो है। सी दिस इज व्हाट आई वांटेड, कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि बैरियर्स हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी हाँ, हमें बड़ा मसला होता है वॉलंटियर ढूंढने में। फिर स्टूडेंट की परसेप्शन क्या है कि क्या इंस्टीट्यूशन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्या उनको अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। और जब वो दोनों हम देख लें कि एक तो बैरियर्स मौजूद हैं और एक स्टूडेंट्स उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट क्या है, फिर हम उसको कंपेयर करें। ठीक है जी, ये सारी की सारी बात है। वॉलंटियरिंग इज एन एक्टिविटी। अच्छा, ये वाला ये टाइम ड्रॉप होने वाला है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कम बैक टू दिस डॉक्यूमेंट अगेन। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस मीटिंग हेयर, हमारे ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए हैं। सो आई एम गोइंग टू कम बैक एंड यू नीड टू लॉग बैक ऑन। आई थिंक हमें 10 या 20 मिनट का और काम करना होगा। ओके जी।